کہہ رہے ہیں کہ اس کو سلیب دو. اور گڈ فرائیڈے جو ہے یہ بے شک ایک دکھ بھری داستان ہے، لیکن میرے اور آپ کے مسیح نے انہی دکھوں میں سے ایک ایسا بڑا کام کیا، اور وہ کام جو تھا وہ نجات کا کام تھا، جس کے وسیلہ سے میں اور آپ آزاد ہو گئے، جس کے وسیلہ سے میں نے اور آپ نے رہائی پائی. یہ ایک ایسی شرمندگی تھی، ایسا صلیب کا دکھ تھا جو میرا اور آپ کا تھا، لیکن میرے مسیح نے وہ دکھ مجھے اور آپ کو نہیں آنے دیا، بلکہ وہ دکھ خود سہ لیا، تاکہ ہم اس کی شرمندگی کے وسیلہ سے، اس کے صلیب اٹھانے کے وسیلہ سے نجات میں آ جائیں، آزاد ہو جائیں. یہ ہمارے گناہوں کی وہ بوجھ تھا جو یسوع نے اٹھا لیا اور ہمیں آزاد کیا. آج کا دن جو ہے یہ پوری دنیا میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. آج کا دن جو ہے یہ ایک بہت خوشخبری کا دن ہے، جس میں یسوع نے رہائی دی. آج اس کی رہائی کے وسیلہ سے میں اور آپ آزاد ہیں. آج اس شرمندگی کے وسیلہ سے جو یسوع نے اٹھائی وہ میری اور آپ کی شرمندگی تھی. اور میں آج سوچ رہی تھی کہ مفسرین بتاتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں جب رومی صلیب دیتے تھے تو وہ بندے کو بالکل ننگا کر کے صلیب دیتے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی شرمندگی تھی جو مسیح نے میرے اور آپ کے لیے سہی. یہ ایک ایسی شرمندگی تھی جس کو بیان کرنا بھی بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ خدا کے نام کو جلال ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو رہائی دی، ہمیں آزاد کیا. اور یہ سب جانتے ہو کہ 11 جو شاگرد تھے وہ گلیلی تھے، لیکن ایک شاگرد جو تھا وہ یہودا اسکریوتی تھا، اور وہ یہودا کا تھا جس نے یسوع کو بیچ دیا. اس کی قیمت ٹھہرائی گئی اور اس کے ہاتھوں سے یسوع بکا. اور 11 شاگرد جو تھے وہ گلیلی تھے. آج مجھے اس میں جب میں میسج بنا رہی تھی تو مجھے ایک بات بھی یاد آ رہی تھی، اور یہ بات بے شک مذاق ہو، لیکن مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کی وہ غیرت یاد آئی. جب یہ بہت چھوٹی تھی، اسکول جاتی تھی، تو سب جانتے ہیں کہ یہودا بھی رکشہ چلاتا تھا. وہ بچوں کو لینے آتا تھا تو یہ کہتی ہے کہ ماما یہ مجھے بہت برا لگتا ہے. تو مجھے اس نے کئی دفعہ کہنا یہ مجھے بہت برا لگتا ہے. تو یہ میں نے بولا شاید کہیں وہ اس کو چھیڑتا ہوگا، مذاق کرتا ہوگا، اس وجہ سے یہ کہتی ہے. تو میں نے ایک دن اس کو پوچھا کہ تجھے یہ برا کیوں لگتا ہے؟ کہتی ماما یہ یہودا اسکریوتی ہے، اس نے یسوع کو پکڑوایا تھا اور یہ مجھے بہت برا لگتا ہے. میرا اس کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا. بے شک اس کی سمجھ میں یہ بات تو نہیں تھی، لیکن وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ وہ یہودا تھا جس نے یسوع کو پکڑوایا تھا. اور یہ بات مجھے مذاق میں لگی، لیکن آج میں سوچ رہی تھی کہ جب ہمیں یسوع کی غیرت آتی ہے تو ہمیں واقعی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب یہ دکھ میرے تھے تو آج اس نے سہے، لیکن آج ہماری غیرت نہیں ہے. آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، یسوع کو دھوکہ دیتے ہیں، خادموں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے لوگ ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم یسوع کے. لیکن ہمارے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے کہ ہم واقعی یسوع کو جو ہے جان سکیں کہ یہ نجات کا منصوبہ میرا تھا، یہ رہائی کا منصوبہ میرا تھا. آج کیا میں ان 11 میں سے ہوں یا اس ایک میں سے ہوں جس نے یسوع کو پکڑوایا؟ تو آج ہمارے بھی یہ سوچنے کا پوائنٹ ہے، سمجھنے کا پوائنٹ ہے کہ آج اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ میں کس جگہ پر ہوں، میں نے یسوع کے ساتھ کیا کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا اس نجات کے منصوبے کو سمجھ رہا ہوں. آج ہر بندہ جیونے کی پاور کو مانگتا ہے، لیکن ان دکھوں میں سے گزرنا کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس نے یہ دکھ نہیں سہے وہ سکھ کی بھی آس نہیں رکھ سکتا. اس لیے جو مسیحی ہے اگر کسی پریشانی میں ہے تو آپ اڑے اور کھڑے رہیں. میرا خدا آپ کو آزاد کروائے گا، آپ کو چھڑائے گا، آپ کو بچائے گا، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے اور اس کے وعدے برحق ہیں. اس نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اس لیے گڈ فرائیڈے جو ہے وہ آج میری اور آپ کی زندگی کے لیے واقعی گڈ ٹھہرے گا. کب ٹھہرے گا؟ جب ہم پہچانیں گے کہ میں کس جگہ پر ہوں. کیا میں 11 گلیلیوں میں سے ہوں یا ایک ہی یہودا اسکریوتی ہوں؟ تاکہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں
हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, सोचेंगे कि मैं किस लाइन में हूँ। अगर मैं ऐसी कमजोरियों में हूँ जो यीशु को बेचता, तो आज माफी मांगे खुदावंद से ताकि आगे बढ़े कलाम की कुदरत के लिए। हालेलुया। 5 मिनट के लिए अपनी जिंदगी पर गौर करें। हालेलुया। यीशु आप सबको इसके वसीला से बरकत दे। इसी तरह आगे हम गौर करते हैं कि गुड फ्राइडे का खास जो मंसूबा था वो क्या था। दूसरा करंथियों पौलुस रसूल का खत, पौलुस रसूल का करंथियों के नाम दूसरा खत, उसका 5 बाब 18 से 20 आयत तक। और बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है ताकि हमें पता चले कि यीशु का क्या मंसूबा था। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़े। मुकद्दस पौलुस रसूल के लिखा हुआ खत करंथियों के नाम, उसका 5वां बाब 18वीं है इससे। और वो सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया। उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। आमीन। खुदाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत। कितने जानते हैं कि पाक और पाक तरीन के दरमियान एक दीवार थी। पाक मकाम और पाक तरीन के दरमियान एक ऐसी जुदाई की दीवार थी और वो गुनाह की दीवार थी जिसने हमारे और बाप के आगे जो है एक रुकावट डाली थी कि हम बाप के पास नहीं जा सकते थे। क्या रुकावट थी? वो दीवार जो है वो गुनाह की दीवार थी जो पाक और पाक तरीन मकान के दरमियान में थी। पाक तरीन मकाम जो है वहाँ खुदा की हुजूरी रहती है, अहद का संदूक है और वहाँ पर सिर्फ सरदार काहिनी है जो साल में एक दफा जाता था और वो भी लहू के साथ जाता था, खून के साथ जाता था। और अगर खुदा की नजर उस खून पर नहीं पड़ती थी तो वो सरदार काहिन वहीं पर मर जाता था क्योंकि वह ऐसा पाक तरीन मकाम था। लेकिन पाक तरीन और पाक के दरमियान ये एक जुदाई की दीवार थी। ये एक ऐसी दीवार थी जो गुनाह की दीवार थी और ना तो हम बाप तक हम नहीं पहुंच पाते थे। तो जब ये दीवार जो है यहूदी मौरख यहूसबत का कहना है कि ये जो दीवार है, ये जो पर्दा है, ये 70 फुट लंबा था, 24 इंच ये चौड़ा था और 4 इंच ये मोटा था। यानी इसकी इतनी मोटाई थी कि अगर 2 बैलों की जोड़ियां भी इसको धक्का देती थी तो ये गिर नहीं सकता था। ये सिला हुआ था। ये एक ऐसी जुदाई की दीवार थी जो बाप और मेरे और बाप के दरमियान, आपके और बाप के दरमियान मिलाप को रोकती थी। ये पाक और पाक तरीन मुकाम के दरमियान में थी। लेकिन जैसे ही मेरे और आपके मसीहा ने आज सलीब पर चढ़कर 3 बजे जब कहा कि तमाम हुआ, और यहाँ पर चौथा कलमा ये था, एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये बात जो है ये हमें याद दिलाती है
कि उस वक्त जो था पाक तरीन के अंदर एक स्काई ब्लू लाइट थी जो हर वक्त ऑन रहती थी, उसको शिकायना कहते हैं और सारे तकरीबन जानते हैं इस लाइट के बारे में। शिकायना उसको बोलते हैं और वो लाइट जलती रहती थी। और यहाँ पर इस जुदाई की दीवार को गिराने के लिए, ताकि मेरा और आपका बाप के साथ डायरेक्ट मेल हो जाए, यीशु ने सलीब पर कहा तमाम हुआ। और जब ये कहा तो वो पर्दा जो है नीचे से लेकर ऊपर तक फट गया और वो रास्ता खुल गया, जुदाई की दीवार टूट गई, मेरा और आपका मिलाप जो है वो बाप के साथ हो गया। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के लिए। आज मेरी और आपकी सुलह जो है वो करवाने वाला यीशु है, उसका लहू है, उसके कोड़े हैं, उसका सलीबी रास्ता है, उसकी फतह है, जिसने मुझे और आपको बाप के साथ मिलवाया, जिसने मुझे और आपको बाप के साथ सुलह करवाई। वो गुनाह की दीवार को गिराकर आज निजात के मंसूबे को पूरा किया। और ये गुड फ्राइडे जो है इसका इंट्रोडक्शन था, इसका तारफ था कि हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या मकसद है। उसने कहा तमाम हुआ, तो तमाम ये नहीं हुआ था, तमाम ये हुआ था कि वो दीवार को गिराकर उसने मुझे और आपको आज़ाद करवाया, ताकि हम अपने गुनाहों से आज़ाद हो जाएं और हमारा राब्ता जो है वो बाप के साथ डायरेक्ट हो जाए। इसी तरह हम अब जब अपने कलाम की तरफ बढ़ेंगे, वो कलाम जिसकी तरफ हम ध्यान देंगे बड़ी तवज्जो के साथ। बेशक आज मैसेज लंबा है, लेकिन आप सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे की मीटिंग जो है ये 12 से 3 बजे तक होती है, लेकिन हम खैर डरना नहीं, घड़ी की तरफ नहीं देखना, कोशिश करूंगी कि इसको शॉर्ट करके ताकि जल्दी खत्म कर सके। आज हम अपने उस कलाम की ओर आएंगे जो खुदावन मुझे और आपको आज खुदावन ने दिया है, ताकि हम समझ सके खुदावन की बातों को। हालेलुया। आज हमारा टॉपिक है सलीब का पैगाम। आज हमारा टॉपिक क्या है? सलीब का पैगाम। इसके लिए हम देखेंगे पहला करंथियों पहला बाब उसकी 18 आयत। पहला करंथियों पहला बाब उसकी 18 आयत। ऊंची आवाज में पढ़ना है। पौलुस रसूल का लिखा हुआ करंथियों की कलीसिया का नाम पहला खत, उसका पहला बाब 18वीं आयत। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। कितनों को समझ आई ये कलाम की? क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत। यहाँ पर पौलुस रसूल जो है ये करंथस की कलीसिया के साथ मुखातब है, और सलीब का पैगाम जो है ये करंथस की कलीसिया को दे रहे हैं। यहाँ पर गौर करेंगे कि जब यीशु कलवरी के पहाड़ पर थे तो हमें 3 सलीबें नजर आती हैं। कितने जानते हैं कि सलीबें कितनी थी? 3 सलीबें थी। यीशु एक पर ही सवार था, लेकिन दाएं बाएं भी सलीबें थी। इसका मतलब है कि कलवरी के पहाड़ पर 3 सलीबें थी, और तीनों सलीबें हमें एक पैगाम दे रही हैं। तीनों सलीबें जो है वो हमें कोई पैगाम दे रही हैं, उनका कोई मकसद था, और यहाँ पर भी सलीब का पैगाम है। सबसे पहले हम गौर करेंगे कि दाएं और बाएं जो 2 डाकू थे, वो बदकार लोग जो थे जिनको सजा के तौर पर सलीब पर लटकाया गया, उनमें से एक बदकार कहता है, सलीब का पैगाम देता है और कहता है कि ये हमारी सजा थी क्योंकि हमने गुनाह किया। एक बदकार अपनी सलीब से ये पैगाम दे रहा है
थी क्योंकि हमने गुनाह किया। लेकिन दूसरा बदकार कह रहा है, वो ये पैगाम देता है कि यीशु बचाने वाला है, फायदा उठा लो। उसकी सलीब जो है ये पैगाम दे रही है, वो भी बदकार ही है, वो भी गुनाहगार ही है, लेकिन वो कह रहा है कि यीशु बचाने वाला है और इससे फायदा उठा लो। अब रही बात यीशु की सलीब की, ये तो वो बदकार थे जिन्होंने अपनी जिंदगी से, उन लम्हात से अपनी सलीब का पैगाम दिया। लेकिन अब बारी आ गई यीशु की, यहाँ पर भी मसीह की सलीब दरमियान में है और इंसान और बाप के दरमियान भी मसीह ही दरमियानी बना। यहाँ पर भी मसीह दरमियान में है और मसीह की सलीब जो है वो हमें क्या पैगाम देती है? वो कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। अब ये सलीब जो है ये दो तरह का पैगाम दे रही है। सबसे पहले उसने पैगाम ये दिया है कि हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफ़ी है। ये मसीह की सलीब का पैगाम है। आप सोचते होंगे कि सलीब तो बोलती नहीं है, फिर सलीब ने कैसे पैगाम दिया? भाई उल्टी कुर्सी रख दो तो वो भी आपको कहेगी कि मुझे सीधा कर दो। सलीब नहीं बोलेगी, लेकिन जो सलीब पर चढ़ा है उसका पैगाम है और वो ये पैगाम दे रहा है, वो कह रहा है कि हलाक होने वालों के नजदीक ये सलीब का पैगाम बेवकूफ़ी है। और दूसरा पैगाम क्या दे रहा है? वो कहता है कि निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। कितनों को समझ आई? दो पैगाम है। एक पैगाम है कि बेवकूफ़ी है और दूसरा पैगाम है खुदा की कुदरत का, उसकी निजात का। उन दोनों ने एक एक पैगाम दिया, मगर मेरे और आपके मसीहा ने दो पैगाम दिए और वो भी पौलुस रसूल के जरिए करंथस की कलीसिया को मुखातब करते हुए, आज मुझे और आपको भी मुखातब करते हुए ये दो पैगाम दिए। ये वो तीन सलीबें थी जो कलवरी के पहाड़ पर थी और हमें ये पैगाम दे रही है। और ये पैगाम डाकुओं ने भी दिया, क्योंकि उसमें से जो डाकू कह रहा है कि ये निजात का वक्त है, मैं जानता हूं कि ये माफ करने वाला है, और उसने यीशु से भी कहा कि जब तो अपनी बादशाही में चाहे तो मुझे भी याद करना। लेकिन दूसरा कह रहा है कि ये तो हमारे तरह गुनाहगार भी नहीं है, वो सलीब पर चढ़कर फिर भी लान तान कर रहे हैं, फिर भी यीशु से सवाल कर रहे हैं, फिर भी कह रहा है। लेकिन जो साथ वाला था उसने कहा कि ये बचाने वाला है, और उसने ये मुकाशफा जानते हुए उसको कहा कि मुझे भी याद करना जब तक अपनी बादशाही में आए। लेकिन यीशु का पैगाम जो है वो दोनों से ही मुख्तलिफ है। यीशु की सलीब जो है वो एक बेवकूफ़ी के पैगाम को जाहिर करती है और एक जो है वो निजात के पैगाम को जाहिर करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों बातों में से बेवकूफ़ी का पैगाम जो है वो हमारे लिए पुराने अहदनामा से भी वाबस्ता है, जिस पर हम गौर करेंगे। हम निकालेंगे गिनती की किताब उसका 21 बाब। जिनके पास बाइबल्स हैं सब निकाले, ताकि आपको पता चले कि ये बात पुराने अहदनामा से ही चलती आ रही है, आज कोई नई बात नहीं है। गिनती की किताब उसका 21 बाब और उसकी 4 आयत से 9 याद तक बड़ी तवज्जो के साथ सुने। गिनती की किताब उसका 21वां बाब 4 आयत से। फिर उन्होंने कोई होर से रवाना होकर बहरे कुलसम का रास्ता लिया, ताकि मुल्क अदूम के बार बार घूम कर जाएं। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज़ आ गई, और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे, तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए?
यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस नकम्मी खुराक से करायत करता है। तब खुदा ने उन लोगों में चलाने वाले सांप भेजे और उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदा की ओर तेरी शिकायत की। सो तू खुदा से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर कर दे। जब मूसा ने लोगों के लिए दुआ की, तब खुदा ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करे वो चीता बचेगा। जब मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटकाया, और ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की, वो चीता बच गया। आमीन। खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। यहाँ गिनती की किताब में जिस्मानी मौत को जाहिर किया जा रहा है। यहाँ पर जो है, जो हल मूसा ने खुदा ने उसको बताया वो जिस्मानी मौत से बचने का है, लेकिन मेरे और आपके मसीहा ने जो हल किया वो रूहानी मौत से बचने का था। यहाँ पर जिस्मानी मौत जो है, ये जो जगह का जिक्र किया गया है कोई हूर का, यहाँ पर हारून की डेथ हुई थी, यहाँ पर हारून मरा था, और वहाँ पर इस्राएली लोग जो है वो खुदा से शिकायत करते हैं, और इस्राएल कौम हमेशा से ही खुदा के खिलाफ रही, हमेशा से ही शिकवे शिकायत करते रहे, खाने पीने पर, पहनने ओढ़ने पर, रहने सहने पर, जहाँ कहीं को कमी आ जाती इस्राएल कौम वहीं पर खुदा की तकफीर करती थी, वहीं पर खुदा से शिकवा करती थी, वहीं पर खुदा से शिकायत करती थी, और खुदा को ये कहते थे कि तुम्हें मिस्र में ही रहने देता, तुम्हें क्यों यहाँ पर लेकर आया, ताकि हम मर जाएं। अगर उनको पानी नहीं मिलता था तब भी वो खुदा से शिकायत करते थे। वो भूल जाते थे कि खुदा ने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम भी किए, लेकिन वो फौरन से अपनी कमी पर गौर करते थे। यहाँ पर भी खुदा को गुस्सा आया और खुदा ने ऐसे सांप भेजे जो उनको काटते, और उनके काटने से उनको जलन होती थी और उसके बाद वो मर जाते थे। ये इस्राएलियों पर उनके बुड़बुड़ाने की वजह से, गुस्सा करने की वजह से, शिकायत करने की वजह से, खुदा की बेइज्जती करने की वजह से उन पर ये आफत आई। और जब आई तो इस्राएलियों को समझ आई कि हमने कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से हम पर मुसीबत आई है। लेकिन मैं आज खुश हो रही थी ये पढ़कर कि उन्होंने तो फिर भी तवज्जो कर ली कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से जलाने वाले सांप हमारे बीच में आ गए हैं, जिनके डसने से हम मर जाते हैं। लेकिन हमारे दरमियान कोरोना कितने टाइम से है, शायद कभी हमने गौर किया है या नहीं किया कि ये हमारे दरमियान क्यों आया है, इसकी क्या वजह है। लेकिन यहाँ पर इस्राएलियों को याद आया कि ये मुसीबत हम पर क्यों आई है, और उन्होंने फौरन मूसा से कहा कि खुदा से हमारे लिए दुआ कर ताकि ये जलाने वाले सांप, मारने वाले सांप हम में से बाहर चले जाएं। और मूसा ने जब खुदा से दुआ की तो खुदा ने मूसा को हुक्म किया कि एक पीतल का सांप बना, उसे बलि पर लटका दे। जिस किसी को जलाने वाला सांप डसेगा, जब वो इस पीतल के सांप को देखेगा तो वो जीता रहेगा। तो भाई पीतल के सांप में कौन सी ऐसी बात थी, वो कौन सी ऐसी खूबी थी कि जो उसको देखता था वो जिंदगी पा जाता था। लेकिन ये हुक्म जो है खुदा का हुक्म था। उस वक्त जो है इस्राएली लाखों की तादाद में थे, इस्राएली जो है वो लाखों थे, लेकिन उनमें से सब ने इस पैगाम को कबूल नहीं किया। बहुतों ने कहा यह बेवकूफी का पैगाम है। बात यही हो रही थी कि यीशु की सलीब हमें दो पैगाम देती है। एक तो हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, खुदा की यीशु की सलीब का पैगाम जो है वो हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है। यहाँ पर भी लोग यही समझ रहे हैं कि पीतल के
सांप में ऐसी कौन सी बात है कि जिस किसी को सांप डसेगा वो उसको देखेगा तो बच जाएगा। उस वक्त भी लोग इसको बेवकूफी का पैगाम ही कह रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जितनों ने उस सांप को देखा वो बच गए, जिंदगी पा गए। लेकिन जिन्होंने उसका इनकार किया, जिन्होंने इस पैगाम पर ईमान ना रखा, वो लोग मर गए। आज मैं घुमाकर आपको उसी तरफ लेकर जा रही हूं कि ये तो वो सांप था जो ये जिस्मानी जिंदगी को बचाने के लिए तैयार किया गया। ये वो सांप था जो एक जिस्मानी मौत होती थी उससे रहाई का पैगाम था, और ये खुदा के हुक्म से बनाया गया, खुदा के हुक्म से खड़ा किया गया, खुदा के हुक्म से लोग इसके वसीला से बचे। ये मौत थी जिस्मानी मौत, लेकिन इसी के मुशाबे हम रूह की मौत, रूहानी मौत पर गौर करेंगे कि जब यीशु सलीब पर था तो उसका क्या पैगाम था। इसी तरह हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब, कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ सुने। ये बड़े घंटों के साथ तैयार किया गया है, ये 10 मिनट का खेल नहीं है। बड़ी तवज्जो के साथ सुने ताकि आपको बरकत मिले। यहाँ पर 14 आयत में यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 14 आयत, यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत। और जिस तरह मूसा ने सांप को बेआबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। कितनों ने गौर किया, यहाँ पर लिखा है वो पुराना ऐतनामा था, ये नया ऐतनामा है। यहाँ पर लिखा है और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, जिस तरह ये बात माजी को जाहिर कर रही है, ये बात गुजर चुकी है और ये बात पुराने ऐतनामा की है। और इस बात को निकोदेमस अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो एक ऐसा मेंबर था, ऐसा सरदार काहिन था जो इस्राएलियों की इस बात को, इस वाकया को जानता था। अगर हम यूहन्ना की इंजील 3 बाब पढ़े तो उसमें पूरा जिक्र जो है वो निकोदेमस का है, नए सिरे से पैदाइश का है, जिसको आज हम मानते ही नहीं है, सिरे से ही हम उसका इनकार करते हैं। पहली तो बात है कि हम खुदा के कलाम को पूरा ही नहीं करते, हम खुदा के कलाम से दूर हैं। अगर सुनते हैं तो मानते नहीं। यहाँ पर निजात का मंसूबा उसी वक्त पूरा होगा जब हम नई पैदाइश लेंगे। जब तक हम बपतिस्मे में शामिल नहीं होते, हम नई पैदाइश नहीं पा सकते। ये खुदा का कलाम कहता है। आज जितनी जिंदगियां बपतिस्मे के बगैर यहाँ पर बैठी हैं, आज मैं उनसे बात करती हूँ कि ये खुदा का कलाम है। अगर आप कहते हो कि ये बरहक और सच्चा है, ये किसी इंसान का नहीं बल्कि खुदावन का कलाम है, तो खुदा ने ही ये कहा कि अगर तुम चाहते हो कि बादशाही में शामिल हो जाओ तो नए सिरे से पैदा होना जरूर है। आज कितने लोग हैं जिस बात की मुखालफत करते हैं, लेकिन वो अंधे हैं, उन्होंने कलाम को नहीं पढ़ा। अगर वो कलाम में से पढ़ लेते तो वो इकरार करते कि यीशु के अल्फाज हैं, ये खुदा ने हुक्म दिया है, ये खुदा का हुक्म है। लेकिन जितने लोग इस बात की नफी करते हैं, जितने लोग इस बात का इनकार करते हैं, जितने लोग इस बात को मजाक में उड़ाते हैं, वो गुनहगार हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हर गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन रूह के खिलाफ बोला हुआ गुनाह कभी माफ नहीं होगा। जो लोग इस कलाम के खिलाफ है, उनको खुदा जो है वो मुजरम ठहराता है। वो कहता है कि अदालत के दिन ये कलाम ही तुझे मुजरम
अपने आप से फंस जाते हैं। लेकिन वही बंदा मुखालफत करेगा जो कलाम को नहीं जानता। अगर आप जानते होते तो आप इस बात को भी जानते कि वो बात पुराने अहदनामा की है, लेकिन ये बात नए अहदनामा की है कि खुदा का कलाम कहता है कि निजात का मंसूबा जो है वो नई पैदाइश के साथ है, नए सिरे से पैदा होने में। अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं होते तो हम खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकते। जो लोग सो रहे हैं प्लीज उठ जाए, मेहरबानी कर। ये भी खुदा के कलाम में है, इसलिए तवज्जो करें, गौर करें कि खुदा का कलाम अगर बरहक है, अगर सच्चा है, अगर ये मिट नहीं सकता, अगर ये टल नहीं सकता, अगर ये पूरा हुए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर मैं कहाँ हूँ? आज मैं क्यों इस बात का विरोध करता हूँ? मैं क्यों इस बात का विरोध करती हूँ? चाहे कोई करती है या करता है, आज ये कलाम निजात का मंसूबा उनके लिए। अपनी जिद छोड़ दें, खुदा के कलाम को देखें, कलाम क्या कह रहा है। अगर यीशु के मानने वाले हो तो जो वो कह रहा है मानो। उसने कहा निकोदेमस से कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। आज सारी बाइबल हम पढ़ लेते हैं, जहाँ पर यह बात आती है वहाँ पर बपतिस्मा सिर्फ भाई मिशन वास्ते, बाकी सब आजाद है। भाई खुदा तो